من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین میں شہید بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، حدیث سن لیجئے۔ دوستو، آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اسے سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ فلسطین میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ قرآن کے سب سے آخری پارے میں ایک سورت ہے جسے سورہ بروج کہا جاتا ہے، اس کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسلم شریف میں مکمل ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کو یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت زیادہ ظالم بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سبھی لوگ اس کو خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ کریں۔ ہاں دوستو، ایک بات کا یاد رکھیں کہ وہ بادشاہ فرعون نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی ایک دوسرا بادشاہ تھا جو کہ ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، تو بادشاہ اور جادوگر کی بہت عزت کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ جادوگر بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو ایک دن اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اب میں بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ کب میری موت کا وقت قریب آ جائے، اس لیے آپ میرے پاس کوئی ایک چھوٹے لڑکے کو بھیج دیا کریں تاکہ میں اسے اپنی جادو کی کلا کو سکھا سکوں، ورنہ میری موت کے بعد ساتھ یہ میرا ہنر بھی ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات مناسب لگی تو بادشاہ نے اپنے شہر کے ایک 10 سال کے لڑکے پر یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ روزانہ جادوگر کے پاس جا کر اس سے علم سیکھے۔ بادشاہ کے حکم پر وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جانے لگا اور اس کے پاس کئی گھنٹے بیٹھ کر جادو کے بارے میں سیکھتا رہا۔ وہ لڑکا روزانہ جس راستے سے جادوگر کے پاس آتا جاتا تھا تو اسی راستے میں ایک پیڑ تھا اور اس پیڑ کے نیچے ایک اللہ والے بزرگ اس کو روزانہ بیٹھے نظر آتے تھے۔ پہلے کئی دن تک تو وہ اس کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن ایک دن وہ لڑکا ان اللہ والے بزرگ کے پاس گیا اور ان کے بارے میں معلوم کیا، تو اللہ والے نیک بزرگ نے اس بچے کو دین کی بہت سی باتیں سکھائیں جو اس لڑکے کو بہت زیادہ پسند آئیں۔ پھر وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آتے جاتے تھوڑی دیر کے لیے ان اللہ والوں کو پاس بیٹھ کر اللہ کی باتیں سیکھنے لگا، ان کی عبادت کے بارے میں سنتا رہا ان کی باتیں۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ یہاں کھڑا ہو گیا کہ ان اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمیشہ اس لڑکے کو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر لگ جاتی، جس کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے کو بہت ڈانٹتا تھا، پیٹتا تھا، لیکن یہ لڑکا لوٹتے وقت اس اللہ والے کے پاس بیٹھتا تھا تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے گھر والے غصہ ہوتے تھے۔ آخر جب اس مسئلے کی شکایت لڑکے نے اس اللہ والے بزرگ سے کی کہ جب میں آپ کے پاس دین سیکھتا ہوں جادوگر والا مجھے ڈانٹتا ہے، اور پھر لوٹتا ہوں آپ کے پاس دین سیکھتا ہوں تو میرے گھر والے میں ڈانٹتے ہیں، لیٹ کیوں ہو جاتا ہوں۔ تو بزرگ نے ان کو ایک مشورہ دے کہ اے بیٹا، تم دین سمجھنے کے واسطے اتنی ساری قربانیاں دے رہے ہو، اس لیے تم ایک کام کرو کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ آخر تم کو اتنی دیر کیوں ہو گئی آنے میں، تو اس جادوگر سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ اور جب گھر والے پوچھے کہ آخر اتنی دیر کیوں ہو گئی تو گھر والوں سے کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا، ورنہ یہ میرے لیے ایک بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔ اللہ والے کی نصیحت اس لڑکے نے ایسا ہی کیا اور شروع کر دیا۔ ایک دن راستے جاتے ہوئے اچانک بیچ سڑک میں ایک بہت ہی زہریلا سانپ آ کر بیٹھ گیا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تو اس وقت اس لڑکے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں آزما کر دیکھوں گا کہ آخر جادوگر سچا ہے یا وہ اللہ والے بزرگ۔ تو پھر اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ والوں سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ جادوگر سچا ہے اور وہ نیک بزرگ جھوٹے ہیں تو میرے اس پتھر سے سانپ کو موت کی گھاٹ اتار دے۔ اتنا کہہ کر اس لڑکے نے پتھر سانپ پر چلا دیا، لیکن اس پتھر سے سانپ پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ سانپ تو اور زیادہ پھکارنے لگا۔ تو اس لڑکے نے دوسری بار آزمانے کے لیے ایک دوسرا پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر وہ اللہ والے بزرگ سچے ہیں اور یہ جادوگر بالکل جھوٹا ہے تو میرے اس پتھر سے
सांप को मौत की घाट उतार दे। ये कहकर जैसे ही उस लड़के ने पत्थर चलाया तो सांप को पत्थर लगते ही सांप वो मर गया, जिसे देखकर लड़के को पक्का यकीन हो गया कि अल्लाह वाले बुजुर्ग बिल्कुल सच्चे हैं और वो जादूगर बिल्कुल झूठा है। लेकिन जब इस लड़के ने ये बात उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और कहा, बेटा अब तुम मुझसे बेहतर बन चुके हो, इसलिए आज से तुम भी लोगों को अच्छी अच्छी बातें, दीन की बातें सिखाया करो। हदीस में आता है कि उस 10 साल के लड़के को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इतनी ज़्यादा ताकत अता फरमा दी कि हर तरह के मरीज़ को अल्लाह की दुआ से बिल्कुल ठीक कर देता था। उसके पास चाहे जैसा भी मरीज़ आता हो, वो उसके सर पर अल्लाह का नाम लेकर जैसे ही फूंकता तो वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता था। यहाँ तक कि जब यह खबर बादशाह के एक ख़ास वज़ीर तक पहुँची तो वो वज़ीर कुछ बीमारियों की वजह से आंखों से अंधा हो गया था। इसलिए ये खबर मिलते ही वज़ीर ने जल्दी से उस लड़के के पास पहुंचकर कहने लगा कि ए बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती तोहफे लेकर आया हूँ, तुम इन्हें कबूल करो और मेरी आंखें ठीक कर दो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे तोहफ़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारी आंखें ठीक नहीं कर सकता, बल्कि मेरा अल्लाह ताला आंखें ठीक करता है। इसलिए तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी आंखें ठीक कर दे। लड़के के कहने पर वज़ीर ने फ़ौरन ईमान कबूल कर लिया। तो लड़के ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर जैसे ही दुआ की तो वज़ीर की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं और वो वज़ीर इतना खुश हुआ कि आगे बढ़कर उसने लड़के को गले लगा लिया। उसके बाद अगले दिन वो वज़ीर बादशाह के महल पहुंचा तो बादशाह भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि आखिर मेरे नाबीना वज़ीर की आंखें कैसे वापस आ गई। तो उस वज़ीर ने जवाब दिया कि ए बादशाह सलामत, ये आंखें मुझे मेरे अल्लाह ने वापस की हैं। ये सुनकर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वो कहने लगा, क्या तुम मेरे अलावा किसी और को भी अपना खुदा मानते हो क्या? तो वज़ीर ने कहा, हाँ, मैं जिसको खुदा मानता हूँ वो आपका भी रब है और मेरा भी है और उसी ने तमाम दुनिया को पैदा किया है। ये बातें वज़ीर के मुंह से सुनकर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उससे पूछने लगा कि आखिर तुमको इस बारे में ये खबर किसने दी, ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? तो वज़ीर ने जब इनकार किया तो बादशाह के हुक्म पर उस वज़ीर को बहुत ज़्यादा मारा गया, पीटा गया। तो आखिरकार वज़ीर ने मजबूर होकर बादशाह को वो सारा बातें बता दी लड़के के बारे में। तो वज़ीर के बताने पर उस लड़के को महल में बुलाया गया और फिर बादशाह ने गुस्से में उस लड़के से पूछा, आखिर तुम्हें इस नए दीन के बारे में किसने बताया? तो पहले तो उस लड़के ने भी इनकार किया, लेकिन बादशाह की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती की गई तो उस लड़के ने सब कुछ बता दिया। तो बादशाह ने उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी महल में बुलाया और अपने वज़ीर के साथ खड़ा करके कहा कि तुम दोनों अपने दीन को छोड़कर मुझे अपना खुदा मान लो, वरना दोनों का बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन दोनों हजरात ने साफ इनकार कर दिया। तो बादशाह ने एक लकड़ी काटने वाला आरा मंगाकर उन दोनों को शहीद कर दिया, वज़ीर को और बुजुर्गुद्दीन को। बादशाह समझ रहा था कि ऐसी दर्दनाक मौत देखकर ये लड़का खुद ही नए दीन को छोड़ देगा और मुझे खुदा मान लेगा, लेकिन वो लड़का बराबर इनकार करता रहा। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने गुस्से में अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को किसी ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक दो। तो बादशाह के हुक्म पर वो सिपाही जैसे ही उस लड़के को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे और उसे नीचे फेंकना चाहा, उस लड़के ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा कि ए मेरे अल्लाह, मेरी इन लोगों से हिफाजत फरमा। जैसे ही उसने ये दुआ मांगी तो अचानक पहाड़ हिलने लगा और वो सभी वज़ीर पहाड़ से नीचे गिरकर मर गए। वो अकेला लड़का बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, आखिर मेरे वज़ीरों को क्या हुआ? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरा अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो गया। ये सुनकर बादशाह को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने दूसरे कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इस लड़के को नाव में बिठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक कर आ जाओ। बादशाह के हुक्म पर ही ऐसा किया गया। सिपाही उस लड़के को ले गए और जैसे ही सिपाही समुद्र बीच में उस लड़के को फेंकने लगे तो अचानक नाव इतनी ज़्यादा डगमगाई वो सिपाही समुद्र में गिरे और अल्लाह ताला ने फिर इस लड़के की हिफाजत फरमाई। वो लड़का फिर से बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उसे देखकर और ज़्यादा परेशान हो गया कि तुम इस बार फिर कैसे बच गया, बार बार कैसे बच जा रहे हो? तो
उस लड़के ने बादशाह से कहा, ए बादशाह सलामत, आप चाहें जितना कुछ भी कर लें, मुझे कत्ल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करता है। लेकिन एक तरीका है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप मुझे कत्ल कर सकते हैं। तो बादशाह ने पूछा, आखिर वो क्या तरीका है? तो लड़के ने जवाब दिया कि आप एक मैदान में मुल्क के सारे लोगों को जमा करें, फिर एक बड़ी सी लकड़ी में मुझे बांध कर लटका दें, फिर दूर खड़े होकर एक तीर पर बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम लिखकर उस तीर पर मुझको चला दें और आप मेरा कत्ल कर सकते हैं। तो बादशाह ने ऐसे ही किया कि सारे मुल्क के लोगों को जमा किया, फिर उस लड़के को लकड़ी में बांधकर और उस पर बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम पढ़कर एक तीर चलाया, तो वो तीर सीधे लड़के की उस गर्दन में जाए लगा, जिससे कि वजह से उस लड़के की शहादत हो गई। ये मंजर देखकर मैदान में सभी लोगों को यकीन हो गया कि बादशाह ने तीर चलाने से पहले जिस अल्लाह का नाम लिया वही हमारा असली खुदा है, जिसके नाम पर इस छोटे से लड़के ने अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर उसी वक्त मैदान में खड़े हज़ारों लोग अल्लाह पर ईमान ले आए, जिसे देखकर बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। आखिर बादशाह ने हुक्म जारी किया कि जो भी अल्लाह पर ईमान लाया है मैं उन सभी को जलाकर ख़त्म कर दूंगा। फिर बादशाह ने एक भड़कती आग जलवाई, जिसमें इन सभी ईमान वालों को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया। कुरान में इन्हीं लोगों को अस्हाबुल उखदूद कहा गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो भी अल्लाह की राह में शहीद होता है उसे अल्लाह ताला कई तरह से नवाजते हैं। उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। उसे कब्र के अज़ाब से महफूज रखा जाता है। उसे क़यामत के दिन कोई भी घबराहट नहीं होगी। और क़यामत में घबराहट ना होने का मतलब ये है कि सभी इंसानों से हिसाब किताब लिया जाएगा, लेकिन शहीद बिगैर हिसाब किताब के ही जन्नत में दाखिल होगा। उसने चाहे ज़िंदगी में कितने भी गुनाह किए हों, अल्लाह की राह में शहादत की वजह से उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और उसके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसकी खूबसूरती कायनात की हर चीज़ से बढ़कर होगी, और उसे इख्तियार कर दिया जाएगा कि वो अपने घर वालों में से 70 से ज़्यादा लोगों की सिफारिश करके उनको जन्नत में ले जा सकता है। ये शहीद का दर्जा दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने शहीद बंदे की इतनी ज़्यादा फजीलत बयान की है कि फरमाया गया है कि ए लोगों, तुम मेरे शहीद बंदों को मरा हुआ मत कहा करो, बल्कि वे मेरे पास तो जिंदा हैं और मैं उसे अपने पास से रिज़्क देता हूँ। इन सभी रिवायतों से मालूम होता है कि शहीद इंसान को अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा नेमतों से नवाजते हैं और हमारे सामने तो वो मुर्दा शक्ल में नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं तो ये हमारे पास ज़िंदा होते। मुर्दा तो वो लोग हैं जो अपने घरों में आम मौत मरते हैं। रिवायतों से मालूम होता है कि जो बंदा शहीद होता है उसकी जिसमें शहादत के बाद ज़रा भी दर्द नहीं होता, वो सिर्फ हमें खून में तड़पता हुआ नज़र आता है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला उसको अपनी राह में शहीद होने का कुछ अलग ही मज़ा दे रहे होते हैं। इसलिए हदीस में आता है कि जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला सभी से पूछेंगे तुम में से कोई दुनिया में वापस तो नहीं जाना चाहता, तो सभी इनकार कर देंगे, लेकिन शहीद कहेगा कि ए अल्लाह, मुझे एक बार फिर से दुनिया में भेज दो ताकि मैं आपके लिए फिर से शहीद हो जाऊं, फिर मुझे वो मज़ा मिले जो जन्नत में भी नज़र नहीं आता। दोस्तों, रिवायतों से मालूम होता है कि जब हम किसी ब्लेड वगैरह से थोड़ा सा भी कट जाते हैं तो उतनी जगह से हमारी रूह हटती है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ब्लेड वगैरह से कहीं हमारी उंगली में थोड़ा सा भी कट लग जाए तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उतनी जगह से हमारी रूह हटती है। अब जिस दिन हमारे पूरे जिस्म से रूह हटेगी तो फिर किस कदर तकलीफ़ होगी। लेकिन अल्लाह की राह में शहीद होने वाला बंदा इन सभी तकलीफ़ों से दूर रहता है और उसको वो तकलीफ़ नहीं होती जो घर में रहते हुए मौत आने पर होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला से शहादत तलब करते रहे और लोगों से कहा कि ए लोगों, अपने घरों में आम मौत मत मरना, वरना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी जैसे मेरे जिस्म को कैंचियों से काटने में होती है। और अगर शहीद होके वफ़ात होगी तो रिवायतों से के मुताबिक सिर्फ उतनी ही तकलीफ़ होगी जितनी एक चींटी के काटने से होती है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे कि मेरा मन करता है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया और फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, और फिर मैं शहीद किया जाऊँ और मुझे फिर से ज़िंदा किया जाए, और मैं फिर से शहीद किया जाए और मुझे फिर से ज़िंदा किया जाए।
اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے دل میں شہید ہونے کا جذبہ بھی نہ ہو تو وہ منافق ہو کے مرا۔ دوستو ان سبھی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین میں شہید ہونے والے ہمارے پھول جیسے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب ہوں گے جب ہم سب لوگ ان پیارے بچوں کو اتنی زیادہ محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو جس مقدس ذات کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس کتنا زیادہ لاڑ و پیار سے رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔